Hello and namaskar to all the viewers. I welcome you on my YouTube channel, that is Bhumi's Physics Tutorial. So we have started with Unit 2, that is Electricity, Magnetism and Semiconductor. Today we are going to learn about one of the most important concept, that is the electric current from the Unit 2. But before starting this concept, let's focus or discuss the terms, that is electricity and structure of atom. Now, we all are very familiar with the term, that is electricity. I can say that our life is incomplete without electricity, or we cannot imagine our life without electricity, because from morning to the night we are completely dependent on the electricity. Many devices which are there at our home, they work on the electricity. Yeah. So electricity, it plays a vital role in our life. We are dependent on many devices or the things which work on the electricity only. Okay. So this electricity is basically of two types. One is the static electricity and another is the current electricity. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा लाइटनिंग जब होता है तो क्या होता है एक्चुअली, दैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड. ओके. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपको एग्जांपल समझना है तो इट्स वेरी सिंपल, दैट व्हेन यू जस्ट रब योर फीट्स ऑन द कारपेट, योर फीट्स दे एक्वायर द चार्जेस. ओके. बट नेचर का एक रूल है, सभी चीज़ें दे आर एट द इक्विलिब्रियम. सो आप जब अपना फीट जो है वो कारपेट पर रब करते हैं एंड इफ़ यू टच एनी मेटल आफ्टर दैट, देन यू गेट अ शॉक, एंड दैट शॉक इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द एक्स्ट्रा चार्जेस विच यू हैव acquired ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड द कारपेट. सो वो जो चार्जेस है दे विल गेट फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू द मेटल, एंड आप जो है अगेन यू विल कम बैक टू द इक्विलिब्रियम स्टेट. सो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट अ शॉक. सो ये है एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल. ओके. और आपने अगर बलून जो है वो आपके हेयर स्ट्रैंड्स पर आपने रब किया तो योर हेयर स्ट्रैंड्स जो है वो सीधे खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट अप. या. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अनदर इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी विच पावर्स आवर हाउस. हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस है ऑल वर्क्स ऑन दैट डिवाइस. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो ये जो वर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यू ऑलरेडी हैव लर्नड दिस इन योर हायर स्कूल्स, राइट? लाइक आपको सबको पता है कि देयर वर वेरियस साइंटिस्ट हु गेव द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ओके. जो पहले साइंटिस्ट थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी, दे सेड दैट एटम इज indivisible. But later on, the discovery of subatomic particles like the electrons and the protons, yeah, leads to the different structures of an atom. And in this way, it is proved that atom is divisible as well as there is a presence of charges inside the atom. So there are different types of subatomic particles which are present in an atom. So according to the Niels Bohr, this atomic structure we follow nowadays, वो कैसा है? That is, there is a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन्स है. प्रोटॉन they carry a positive charge, whereas neutron is a neutral, it don't have any charge on it. Okay. And electrons which are negatively charged, they revolve around the nucleus in a discrete orbit. Okay. हमने देखा है कि there are 4 ऑर्बिट्स होते हैं और शेल्स जिसको हम बोल सकते हैं KLMN. ईच शेल हैज़ इट्स
different capacity to occupy the electrons. Okay, and in this way the electrons, they revolve around the nucleus in this discrete orbits which carries the negative charge, and there is a force of attraction between this neutron, not neutrons, the electrons and the protons, because both are oppositely charged. सो जहाँ पे भी अपोजिट चार्ज है वहाँ पे क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, वो जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो वैरी होता है. ओके, दैट डिसाइड्स विच टाइप ऑफ एलिमेंट और कौन सा एटम है वो डिपेंड न्यूट्रॉन के ऊपर होता है. तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होने वाला है. अब क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड शेल्स हैं, और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर हम पहले शेल की बात करें तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल एंड टू दैट ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाने वाले हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, कम होने वाला है. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट, they can go out of their orbit, they can move easily, and hence they are known as the free electrons. क्यों? because जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द न्यूट्रॉन विल वीकन अप, और वो वीक होने की वजह से क्या होने वाला है, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट फ्री, और वो एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो सकते हैं, मूव. सो ये जो मूवमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू दी अदर एटम, दैट लीड्स टू दी इलेक्ट्रिक करंट. सो लेट्स लुक एट दी इलेक्ट्रिक करंट. सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई देगी, फर्स्ट वन डायग्राम, जहाँ पे हमने एक मेटालिक वायर कंसिडर किया है. ओके, मेटालिक वायर ही क्यों कंसिडर किया है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो है, उसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, बराबर है. जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. मेटल्स ही क्यों हमने कंसिडर किया है, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स है, एज दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नॉट कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे हमने एक मेटालिक वायर कंसिडर किया है, AB. It has the free electrons. Okay, so these free electrons, as you see in the diagram, they are moving in the random direction. कौन से भी फिक्स डायरेक्शन में नहीं है. वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम से दूसरा एटम, दूसरा एटम से तीसरा एटम, दे आर मूविंग रैंडमली. नाउ सेकेंड जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टू दैट मेटालिक वायर वी हैव कनेक्टेड वन सेल, और सेल का काम क्या होता है, to create the potential difference. So as soon as that cell is connected to the metallic wire, the electrons they get lined up in a one direction, और वो direction cell के terminals पे determine होगा. Okay, now यहाँ पे क्या है, positive negative terminal of the battery है, and we all know that opposite charges they attract each other. So electrons के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो इन दोस डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो. ओके, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई वर्कर खड़ा है और उसका काम क्या है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं फ्रॉम दिस डायरेक्शन उसको पास ऑन करना है टू दिस डायरेक्शन. सो वो जो सेल है इट इज़ वर्किंग एज लाइक एन वर्कर, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको वो पास कर पा रहे हैं. ओके, नाउ यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इन दिस डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन हम इसे नहीं बोल सकते हैं. एग्जैक्टली जो इसके अपोजिट डायरेक्शन है, the opposite direction to the flow of electron is actually the conventional direction of the current. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द
current through that conductor. Okay, so let's define the definition of current. तो current क्यों है? That is due to the flow of this electron. So we can define the current as the rate of flow of charge through a conductor is called as current. It's a very simple definition. Okay, rate क्यों बोला है हमने? Because the charges, they are flowing through that conductor through a certain area with certain time. Okay, so the flow of charges across a particular area of cross section per unit time through a conductor, that is nothing but the current. मान लो कि Q charges है which are flowing through a conductor in time t, then we can write mathematically current as charge per time. And we all know that charge का यूनिट है कूलम, टाइम का यूनिट है सेकेंड, सो करंट का यूनिट कूलम सेकेंड है, बट इसको आप एम्पियर भी बोल सकते हो बिकॉज एम्पियर साइंटिस्ट ही वर्कड ऑन इट और उसके ऑनर में इसको नाम दिया है करंट को. सो दिस इज़ द यूनिट विच वी यूजुअली फॉलो. 1 कूलम पर 1 सेकेंड बोलने की वजह से वी जस्ट से दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. ओके, तो ये 1 एम्पियर क्या है? सो दिस 1 एम्पियर इज बेसिकली द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. कब फ्लो होगा 1 एम्पियर करंट? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज flowing through conductor in 1 second. I think the definition is very simple and easy. Okay, आपको you don't need to give a stress on your mind. Okay, the definition simple है. 1 ampere is the current which is flowing through the conductor when 1 coulomb of charge is flowing through the conductor in 1 second. Now ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं थ्रू द कंडक्टर, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोज्ड बाय द कंडक्टर. बराबर है ना? और ये जो अपोजिशन है विच इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? रेजिस्टेंस. जैसे हमें सबको पता है कि एवरी मैटर, एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स, बराबर है, इट ट्राइज टू हैव इट्स स्टेबिलिटी. किसको भी उसकी स्टेबिलिटी लूज करने में मज़ा नहीं आता है. तो सेम थिंग इज विद द कंडक्टर्स. जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? उसकी लूज हो रही है ना. सो वो स्टेबिलिटी रखने के लिए देयर इज एन अपोजिशन विच इज ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर to the flow of that current, and that is nothing but the resistance. Okay, a good conductor have the low resistance, whereas the poor conductor they have the high resistance. Very simple. अगर अच्छा कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होगी. दैट्स वाई द कॉपर वायर या विच इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं उसमें कॉपर ही यूज़ करते हैं बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो है, उसमें अपोजिशन बहुत कम है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वेयर एज अगर हमने कंसिडर किया वुड, वुड इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बराबर है, बिकॉज वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होने वाली है. या सो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, द रेजिस्टेंस which is offered by that material changes, and that decides whether that is a good conductor or the bad conductor of the electricity. Moving on to the next, that is the Ohm's law. So हमने जो अभी 3 terms देखे, और you might have already known these terms like potential difference, current and the resistance. So ये जो 3 factors है, इनमें जो रिलेशनशिप जो है दैट इज गिवन बाय द ओहम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर
is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided physical states of the conductor, that is the material, the length, the cross-sectional area, and the temperature that remains same. Okay, so you have to keep in this mind that current which is flowing through the material, that is directly proportional to the potential difference, and that depends on the physical state of the conductor, that this physical state of the conductor should not change, तो ही ये अप्लाई होगा वहाँ पे. मान लो कि इफ I is the current which is flowing through the conductor, V is the potential difference across it, then potential difference is directly proportional to the current. Now ये proportionality remove किया by taking one constant which is R. Therefore V is equal to IR. This is the relationship between the potential difference, current and the resistance. So ये जो R है, this is the constant and which is known as the resistance of the conductor. The value of R depends on the nature, dimension and temperature of the conductor. Therefore we can say that R is equal to potential difference upon current, and the unit of this resistance is ohm. Okay, और आप वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हो. So 1 ohm can be equal to the 1 volt upon 1 ampere, और यहाँ पे हम 1 ohm को भी डिफाइन कर सकते हैं. Okay, that 1 ohm is the resistance when 1 ampere of current is flowing through a conductor and the potential difference of 1 volt is applied across the conductor. So Ohm's law आपको ध्यान में रखना है, that is V is equal to IR. यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि potential difference is directly dependent on the current and the resistance which is offered by that conductor. So through this Ohm's law we can say that voltage और current का जो ratio है that is always remaining same. Okay, तो यहाँ पे अगर देखो कि अगर आपने potential difference अगर ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल amount of current will flow, because potential difference is directly proportional to the current which is flowing through the कंडक्टर. और अगर हम करंट को रेजिस्टेंस से रिलेट करते हैं तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. दैट मीन्स अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो लेस अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, और वाइस वर्सा अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट वो जो होने वाला है वो फ्लो होगा. ओके, सो दिस इज़ दी ओहम्स लॉ. और आपको ये ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट का जो रेशो है वो ऑलवेज सेम रहने वाला है, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. एंड दिस लॉ वॉज डिस्कवर्ड बाय George Simon Ohm. It is known as the Ohm's law. So we have seen two concepts. One is the electric current and another is the Ohm's law. Thank you.